Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Matters, Kanuni Mashre. I'm here to discuss legal issues, immigration, litigation, representation. Aapka koi issue regarding immigration, we're going to be more than happy to give you advice. And like always, हमारी जो टीम होती है यहाँ पे शायद मंसूर will be joining with me and to discuss some of these issues. अगर आपके पास कोई issue relating to anything to do with law, then आप हमारे नंबर भी आएगा स्क्रीन पे, हमारा email address भी आएगा and you can contact us. आपसे कहता चलूँ there's been some changes, a number of changes have happened between now and रमज़ान से पहले, so हम आपको वो भी बताएंगे and इंशाल्लाह अगर आपके पास कोई मज़ीद question है where you want to speak in privacy तो आप हमारे details ले सकते हैं from the control room या हमारा email address रहेगा उस पे आप हमें details दें और हम आपको फिर उसके बाद contact करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. So like usually and our opening program, I want to welcome my guest Shai Mansoor who shares a platform. Shahid, welcome to the program. Thank you. It's been a long period since Ramzan time. That's right. Yeah. So obviously आप fresh लग रहे हैं माशाल्लाह से and we're going to be talking about some of these legal issues. जी. पहले से ये बताते चलते हैं लोगों को. There's been a number of changes which have happened. So That's obviously right. I want to bring that to the attention. So viewers को पता चले जो नए कानून जो अभी आए हैं recently 18,600 was a big issue regarding spouse requirement legal financially. That's and right. Recently there's been a case law जहाँ पे in the Court of Appeal it was upheld that the judgment to be carried, i.e. 18,600. Let's just discuss that at the moment. जी I mean इस judgment के आने से पहले भी अगर viewers को पता हो कि जब हम previously इस issue को discuss करते थे तो मैं हमेशा से यही कहता था कि जो government का stance है it is to restrict and control, manage migration. तो लॉ लॉर्ड्स ने उसके साथ जो है वो जो कोर्ट ऑफ अपील के जजेस हैं उन्होंने उस बात से जो है इत्तेफाक किया. उन्होंने यही कहा कि जी जो भी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड सेट किया है इट इज़ राइट. तो इवन दो यानी कि हम लोग कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है जो एवरेज सैलरी है उससे तो डेफिनेटली अबव है, लेकिन फिर भी जो है वो जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के फेवर में गया. बिल्कुल. आपको चलें ये डिस्कस करते हैं. पहले ये था maybe it might come down to about 13.5 or 15,000 जो भी लोगों के माइंड में था कम होने का. Sure, yeah. But that's not happened. Not happened now. There are a number of applications जो चले गए and I'm going to let the viewers know that in that position the 18,600 will be the rules they'll be required to meet and therefore most of them will be declined, refused हो जाएंगे. Let's just talk about that because there's been a number of cases pending. Yeah, I mean previous to this program we've also discussed कि अगर 18,600 आपका जो criteria है that's overall income. तो अगर किसी की जो salary है वो 18,600 नहीं है, we've talked about advising viewers कि they could be self-employed as well on top of their main job. Also savings can play a role in but then with the savings we need to know exactly 2.5 which is a quite substantial amount of savings. चलो हम आपसे यही डिस्कस करते हैं. पहले तो ये था जो 18,600 this is the legal requirement threshold for the income for spouse spouse की visa की बात करें. So let's just talk about that. Now जो लोगों ने अभी वेट कर रहे थे सोच रहे थे maybe 18,600 से less हो जाएगी, then we're going to put the application in. Yeah. They're going to be very disappointed. Absolutely, yeah, because I mean now the judgment is very clear. It's in black and white. The government was right to demand or ask for 18,600 as a minimum financial requirement for somebody to sponsor their spouse. And but wasn't it slightly on the up? Slightly, we thought it was 18,600 might be a bit high. But regardless of what we or the general public thinks, the law is the law. The government has made a position very clear. Yeah. They need to control their migration, and in that respect, they want to control the number of people coming in. Yes. So the other thing was this also, the courts of appeal made, according to, this is what they've said, and I'm going to read this out, and this is according to the politics.co.uk. They said the ruling was found that all immigration law is inherently discriminatory, but in this case found that the 18,600 minimum income requirement for partner's visa was justified. Yeah. So like I said initially that the government has got an agenda that they came in power with the view to restricting and controlling the number of people allowed to come and stay here.
and this was one of the ways they were trying to control the number of people allowed to come and stay here. Of course. So व्यूज़र को भी ये बताते चलते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन अभी होम ऑफिस में बहुत सारे डिसीजन नहीं बनाए थे. UKBA border agency, they were pending. कुछ एप्लीकेशन उन्होंने पेंडिंग में रखी थी, waiting for this outcome. A lot of people will be disappointed that 18,600 will be the requirement of the income which is expected. अगर आपका इस situation you're going to feel you fall into that category, you need some legal advice. आप अपने वकील से बात करें या किसी legal expert से बात करें. Or alternatively आप हमें भी contact कर सकते हैं. Our details are on the screen. We're going to be more than happy to help you. Just moving on a little bit. Yeah. So again, the requirements was one of the income was one of the important threshold, 18,600. There were others requirements as well. For example, चलो अभी कॉल आ रही, मैं पहले कॉल ले लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम रिजवी. जी वालेकुम सलाम. वेलकम टू द प्रोग्राम. जी बहुत शुक्रिया. मैं लंदन से रियाज बोल रहा हूँ. मेरा सवाल ये है जी जी कि मैं सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में वो पता है, मेरा ख्याल है आपको कि 570 दिन या समथिंग है कोई, इससे 5 साल में इतने होने चाहिए, आप आउट हो सकते हैं मुल्क से. जी. तो मेरा मसला ये है कि मैं इससे ज़्यादा हुआ हूँ, मतलब मैं 650 दिन मतलब यूके से बाहर रहा हूँ, और उसकी वजह यह है ड्यू टू हेल्थ रीज़न. क्योंकि यहाँ आपको पता है NHS में वो आपको क्यू में पुट कर देते हैं और आप लॉन्ग टाइम वेट नहीं कर सकते. मुझे पहले हेमोराइड्स का प्रॉब्लम हुआ, मैंने उसकी सर्जरी पाकिस्तान से करवाई. उसके बाद मुझे किडनी का मसला हुआ, वो भी मैंने रिमूव पाकिस्तान से करवाई. तो इस सिलसिला में मुझे यानी कि ज़्यादा देर पाकिस्तान में मुझे रहना पड़ा. मैं यहाँ वेट नहीं कर सकता था, क्यू में नहीं रह सकता था NHS में, आपको पता ही है. जी. तो कोई ये नहीं करते, तो उसी वजह से मेरे ज़्यादा दिन पाकिस्तान में हुए हैं. मेरा सवाल ये है कि क्योंकि मेरा ज़्यादा दिन यहाँ से बाहर रहा हूँ, तो क्या मैं वो अपने जो मेडिकल वो सर्टिफिकेट हैं, जो सारा कुछ है, वो जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ लगा के क्या ये मुझे वो कुछ कंसेशन मिल सकती है जब मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा सिटीजनशिप के लिए? क्योंकि मैं तो उस कंडीशन को क्रॉस कर रहा हूँ, मैं ऊपर हो गया मेरे दिन, तो उसमें मुझे कुछ मिलेगा, कुछ कंसेशन वगैरह या नहीं मिलेगा? प्लीज इसका तफसील के साथ जवाब चाहिए. जी जनाब, थैंक यू फॉर कॉल रियाज भाई. कीप वाचिंग प्रोग्राम. इंशाल्लाह आपको बताएंगे सिटीजन के बारे में जो आपने बात करी, हाउ मेनी डेज आउट यू टेकन आउट द कंट्री, एंड वी गोना एक्सप्लेन टू यू. कीप वाचिंग प्रोग्राम, वॉच करें. इंशाल्लाह हम आपको इस पे भी मजीद डिस्कस भी करेंगे और बताएंगे भी. आगे जो हम क्वेश्चन जो लेके चल रहे थे, वी डिस्कसिंग अबाउट some of the other requirements on the spouse visas. One of them was also that you need to be not only in employment and having the 18,600, but also correspond with the bank statements. Yeah, that's right. And so income has to be backed by your employment. Employment, that's right. If you are employed, then obviously, and you are receiving a salary, then that salary needs to be shown to be deposited into your. शायद सब कॉल आ रही है, उससे लेते फिर आते हैं आपके पास. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. कौन कहाँ से? जी आप ऑन लाइव हैं, ऑन एयर. वेलकम टू लीगल मैटर्स. आई थिंक सो मैसेज ऐसे है कि मैंने पता करना था कि मैंने अपना ब्रिटिश नेशनल हूँ, यहाँ पे मेरे बच्चे भी ब्रिटिश हैं. हेलो. जी आपकी सुन रही, आप बात करें. तो इस तरह के वाइफ का मेरा यहाँ पे स्टेटस नहीं था, तो अब उनकी एप्लीकेशन FLRO जमा करवाई हुई है, एक्नॉलेजमेंट आ गया और मेरे यहाँ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं. तो आप मुझे बेनिफिट के बारे में बताएंगे क्या है कि मैं बच्चों के ब्याह पे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और अपना वर्किंग टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ? पहले मेरी फुल टाइम जॉब थी, अब 24 आवर जॉब हो गई है. ओके, प्लीज़ ज़रा ये मुझे बताइए. आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जी असगर. असगर साहब, शुक्रिया असगर साहब, वेलकम. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में जवाब भी देंगे, बताएंगे भी क्या रूल्स हैं, किस तरह से अफेक्ट करते हैं इंशाल्लाह. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. अगेन व्यूज़ उनको अब ये बताते चलते हैं, अगर आपके पास कोई रिलेटिवली question to immigration or some kind of litigation, or any question you may feel is relevant to legal, तो आप हमें contact करें. Obviously Shahid, before we go into the questions, so the legal requirements is also 18,600, 6 months bank statements. हमने ये भी बात करी थी पहले programs रमज़ान से पहले, that these are very important and people need to understand that if this income doesn't correspond to the bank statements, then they'll Well, I mean, it casts doubts on your credibility, isn't it? बिल्कुल. शायद साहब एक कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? जावेद बात कर रहा हूँ जी, लंदन से. मैंने प्रोग्राम में बात करनी. जी जावेद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम. You're actually live on air
आप अपना Okay. जी क्वेश्चन बताएं। ये सर मेरी वाइफ जो है ब्रिटिश हैं और हमने शादी की थी आउटसाइड यूके स्पेन में, और स्पेन में ही रहते रहे। वहीं से मैंने वीज़ा अप्लाई किया, 2011 में यहाँ आया था ठीक है। एज ए ई फैमिली मेंबर यूके में, और इन्होंने मुझे 5 साल का रेजिडेंस कार्ड दिया है। ठीक है। तो अब मैंने पता ये करना है कि वो जो ई फैमिली मेंबर है, क्योंकि शादी तो मैंने ब्रिटिश सिटीजन से की, लेकिन आउटसाइड यूके क्योंकि वो शुमार की जाती हैं यूरोपियन सिटीजन। अब वो मैं कितने अरसे बाद यहाँ परमानेंट वीजे के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मेरी एक बेटी भी 15 महीने की हो गई है यहाँ यूके में, वो भी ब्रिटिश नेशनल है। ठीक है जावेद साहब, थैंक यू, हम आपका क्वेश्चन आगे समझ गए। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम वॉच करें, आपको जवाब मिलेगा इसी प्रोग्राम में। की वॉचिंग प्रोग्राम। थैंक यू। Obviously Shahid, let's just carry on spouse visas, because a lot of these issues views को बताते चल रही that these are very important, particularly the income, and that's number one. Bank statements आपके correspond करना चाहिए with your income, and also the accommodation. That's right. Accommodation, you got sufficient and suitable accommodation for not only for yourself but also for your spouse. That's one of the necessary criteria. Yeah. So what about हमने लोगों को ये भी पहले बता चुके थे that the only financial requirement doesn't apply if you under disability allowance or care allowance. एक कॉल आगे से पहले ले लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मैंने ये सवाल पूछना था कि मैंने लॉन्ग रेजिडेंसी 10 ईयर कंटिन्यूसली के बिहाफ पे अप्लाई किया हुआ है सेट एलआर में। ठीक तो है। ये तकरीबन 3.5 महीने हो गए, बायोमेट्रिक हो चुके हैं, तो कब तक जवाब मुतवक्को? कितना टाइम होम ऑफिस यूजुअली लगाती है? तो ये आपको 3 महीने हो गए। आप अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम जबीन। जबीन, ओके, थैंक यू। 3.5 महीने नियरली हो गए। 3.5, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। शुक्रिया आपके कॉल का। एंड अगेन व्यूज़ से ये कहेंगे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिलेटिवली टू ह्यूमन राइट्स और लॉन्ग रेजिडेंसी और व्हाटएवर asylum, we're more than happy to take your calls. Shahid, obviously we were just talking about the issue related to the sufficient accommodation, adequate and sufficient accommodation. Yeah. Let's just talk about that. अगर इसमें जो problem होती है that sometimes they use that against you if you haven't got enough rooms. Sure. So let's just, the importance is very important to tell viewers. I mean, the law says that people shouldn't live in overcrowded accommodation. So each person should have their own private space for living. तो अगर आप एक और additional family member को add करना चाह रहे हैं अपने family household में, तो the onus is on you to show in some sort of evidence that there is enough accommodation for this new person who would be joining. ठीक है शाहिद साहब, अभी आपसे डिस्कस यही करेंगे। अभी कॉल आगे से शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कौन कहाँ से? हाँ जी, मेरा नाम अली है जी, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे रिसेंटली बच्चे की बिहाफ पे वीज़ा मिला था 7 इयर्स बेस पे। बेसिकली बच्चे को 7 साल हुए थे, उसको मिल गया, और 7 पेरेंट्स को भी मिल गया। अब बच्चा जो है उसने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है इन कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है। तो लेकिन मुझे अभी 10 साल नहीं हुए, मुझे नेक्स्ट ईयर में करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब क्योंकि 7 इयर्स बेस पे मुझे भी मिला है और मेरी वाइफ को भी मिला है, अब बच्चा जो है वो 2 महीने बाद इंडेफिनिट अप्लाई करना है। तो हमारा वही जो हमें डिस्कशन मिली है बच्चे की बिहाफ पे 7 इयर्स, हमें वही कंटिन्यू करेगी या हमने भी दोबारा फिर अप्लाई करना पड़ेगा? ये प्लीज बताइए। ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुक्रिया आपका अली भाई। की वॉचिंग प्रोग्राम, इसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज वन एरिया वी विल डिस्कस। अभी थोड़ी सा ब्रेक जब होएगा उसके बाद ये डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन डिड अप्लाई द एप्लीकेशन, बच्चे के साथ करें, सेपरेट करें, या डू दे हैव टू वेट? विल कम टू दैट लेटर ऑन प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम ऑफ दीज इश्यूज जो हम अभी बात कर रहे थे। सो द accommodation is very important. And we also said about the threshold income key. Those people who are who's receiving disability allowance, they don't need to require, and carers. Yeah, carers and people on disability living allowance are 2 categories which are exempt from the financial requirement. Financial income threshold requirement. Yeah. But otherwise, everything else is applicable. Otherwise, now especially more so now that we've got this judgment, it makes the situation transparent, very clear. I think the biggest issue the people will strongly feel that, again, they feel that this is not really fair.
18,600 is still, agar minimum wage le do, it won't come to the 18,600. And with all the austerity, it won't, yes. This is a big issue. Absolutely, yeah. I mean, so it's that dividing the families, isn't it? I mean, as lawyers, we find, obviously, we want to help the community and the people. Yeah. Do you know? I mean, there are political forces driving this policy and agenda, but I mean, as lawyers, we need to basically apply the law or advise the clients in terms of what the law is. बिल्कुल, we have to uphold the law. but उनको बताएंगे किस तरह कर सकते हैं. कॉल आ रही है, उसे शामिल करते हैं. हेलो जी, कौन साहब, किधर से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन बोल रहा हूँ लंदन से. वेलकम हुसैन साहब. मेरी वाइफ स्पाउस वीज़े पे आई थी फरवरी 2013 में. ठीक है. तो उसे 27 मंथ्स का वीज़ा मिला था वहाँ से, पाकिस्तान से. तो अभी कुछ मेरे जॉब के हालात ख़राब हो गए थे, इस वजह से भी इस साल मुझे फैमिली टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई करना पड़ा. ठीक है. और हाउसिंग के लिए भी कुछ वहाँ से सपोर्ट मिलती है. तो अभी उसको जब मैं अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई करूँगा दोबारा इंडेफिनिट के लिए, तो उसमें वो इफेक्ट करेंगी चीज़ें. ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे. वेरी वैलिड. सेंस आप प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह आपको फुल जवाब देंगे एक्सप्लेनेशन के साथ. इंशाल्लाह कीप वॉचिंग द प्रोग्राम एंड विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट यू नीड टू डू. थैंक यू फॉर योर कॉल. अगेन some of these very important relevant questions जो हमारे पास आ रहे हैं, इसको मैं ज़रा डिस्कस भी करेंगे, लोगों को बताएंगे उनके क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, किस तरह उनको गाइडेंस हमें देना है. एंड दिस वेरी इम्पोर्टेंट. अगेन हम जो ये डिस्कस जो कर रहे थे अभी, carry on with you in a minute. कॉल आगे से ले लेते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से? हेलो. आप you're on air brother, आपकी आवाज़ आ रही है. आप अपने फ़ोन पे बात करें clearly so we can hear you. जी इसके बारे में पूछना था. जी, आप अगेन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप अपनी टीवी की आवाज़ कम कर दें so that we can hear you. मैंने केस के बारे में पता करना था. काय के बारे में? केस के बारे में. जी आप बताएं, अपना नाम बताएंगे, कहाँ से बात करेंगे? Who are you? जी मैं वाजिद बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से. जी वाजिद भाई, थैंक यू फॉर योर कॉल. आप हमें सवाल बताएं प्लीज़. जी सवाल ये है कि बच्चा तो यहाँ का ब्रिटिश है, तो उसकी वाइफ जो बच्चे की माँ है, लेकिन उसका नहीं है यहाँ तक केस कोई, तो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो क्या मतलब जाके वापस आ सकते हैं? ऐसा मसला तो नहीं होगा? आप ये एक्सप्लेन करें. आप कह रहे हैं बेटा ब्रिटिश है और वाइफ जो आपकी हैं वो पाकिस्तान में, और आपकी नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तानी? नहीं, नेशनलिटी यहाँ पे तो ब्रिटिश है नेशनलिटी, लेकिन जो वाइफ है वो भी इधर ही है. आप ब्रिटिश हैं, बेटा ब्रिटिश है, आपकी वाइफ ब्रिटिश है? नहीं, वाइफ नहीं ब्रिटिश, उसके पास कोई भी स्टेटस नहीं है. तो आपकी ये शादी पाकिस्तान में हुई थी या यूके में हुई थी? नहीं, यहाँ पे यूके पे हुई है. ओके. अब कब हुई थी आपकी शादी? हाउ लॉन्ग? तकरीबन 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, लेकिन जो वाइफ का अभी तक केस अप्लाई नहीं किया, तो बच्चा जो है वो भी उसका ब्रिटिश पासपोर्ट बना है, तो आगे वाइफ का जो है वो अप्लाई करना है. तो किस बेस पे, मतलब अगर वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं तो बच्चे के साथ कोई जा सकती हैं? उनको कोई डॉक्यूमेंट जरूरत होगी या वीज़े के लिए क्या करना होगा उनके? ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो वापस कैसे वहाँ से फिर आएंगे, ऐसा मसला तो नहीं होगा? ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू वाजिद भाई. आपका क्वेश्चन आ गया मेरे पास, एंड इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम के बाद, अभी सॉरी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ये बताते हैं, आपके सवाल के जवाब मिलेंगे. शायद one of the key things is also जो हमें व्यूज़ों को बताना ज़रूरी होता है, is that the changes onto the entrepreneurial. Now a lot of before जो tier 4 पे they can switch to tier 1 entrepreneur. कॉल आ गई, उसे मैं पहले ले लेता हूँ. हेलो जी, हेलो. The call drop हो गए. Now this is another one. Very importantly, entrepreneurial visa. A lot of students, quite rightly, they can switch tier 4 से, they can go, or any जो switching was allowed, is still allowed. Yes. मगर उन्होंने थोड़ी सी इसकी गाइडेंस बदल दी और व्यूज़ को ये बताते चलते हैं. पहले ये था that the rules were very much that आप venture capitalist से अपने पैसे source of जो है funding का arrange करेंगे. That was one of the possibilities. But now that's been done away. Yeah, because very strictly they've got rid of that. The government has obviously been going through their previous applications and they found a significant element of fraud
सर शाहिद साहब मैं आप एक ब्रेक से पहले कॉल ले लेता हूँ अब फिर हमारी ये मौजूद चलता रहेगा इंशाल्लाह। हेलो कौन कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं यास्मीन बात कर रही हूँ। मैंने आपसे सवाल करना था कि मैं फरवरी 2013 में आई थी, तो मुझे पूछना ये था कि अभी 2 साल मुझे होने वाले हैं, फरवरी में 6 मंथ बाद हो जाएंगे, तो मैं कब मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? आप कौन से वीज़े पे आई थी यास्मीन बहन? स्पाउस वीज़े पे। स्पाउस पे इन 2013 में आई थी ना, तो ठीक है। अब कब कर सकती हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन? और मुझे वीज़ा भी 3 साल का मिला हुआ है। ठीक है, अंडरस्टैंड। या नियरली 48 मंथ का मिला हुआ है, सॉरी। हाँ ठीक है, दैट्स ऑलराइट, वी अंडरस्टैंड। कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम वॉच करें, अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हाँ आप वॉच करें, कीप वॉचिंग प्रोग्राम। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास आ रहे हैं, वी गोना डिस्कस। ये जो अभी हमारे पास जितनी कॉल हैं इंशाल्लाह अभी हम आपको जवाब भी दे दें, अभी ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं, तो उसके बाद ये जवाब देंगे। पर उससे पहले लेट्स जस्ट टच ऑन एंटरप्रेन्योरल जो था। इफ यू आर इन एनी कैटेगरी यू कैन स्विच फ्रॉम tier 4 or whichever category to tier 1 entrepreneurial. That's right. And now the government has made it very clear that the venture capitalists की फंडिंग जो आप सिक्योर करना चाहते थे, they don't want to deal with that. Yeah, it has to be from government. जी मैम सॉरी शायद ये डिस्कस करें ब्रेक के बाद। कॉल आ रही है, इससे लास्ट एंड फाइनल कॉल ले लेते हैं बिफोर ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू दैट। जी हेलो 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 जी, मैंने केस के बारे में पता करना। जी वालेकुम, आप अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम सलमान। सलमान, ठीक है सलमान भाई, आप अपना क्वेश्चन बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे किया था अप्लाई इंडेफिनिट के लिए, तो तकरीबन 2 मंथ हो गए लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। तो नॉर्मली कितना टाइम लगाते हैं या क्या इनका प्रोसीजर होता है? ठीक है, आप थोड़ा सा बता दें सलमान भाई। आपने अप्लाई करा डोमेस्टिक वायलेंस, यू वर द विक्टिम, इज दैट राइट? ठीक है, आपने पूरे उनको अपनी जो डिटेल्स हैं, पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, कुछ प्रूफ ऑफ एवरीथिंग दिया हुआ है। यू हैव गिवन देम ऑल दैट सब्सटेंशियल जो एविडेंस जो रिक्वायरमेंट होती है, जी उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है, सब कुछ उनको दिया हुआ है। ठीक है, अनाउंस 2 मंथ्स अगो, नो प्रॉब्लम। आप प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह हम आपको अभी बताएंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ दीस इश्यूज। थैंक यू फॉर योर कॉल। ऑब्वियसली वी आर गोना बी गोइंग टू द ब्रेक की तरफ जाने। अब we'll discuss the entrepreneurial. अब ब्रेक की तरफ चाहते हैं हम लोग, और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जो आपकी जो क्वेश्चंस आए थे हम उनका जवाब देंगे। और इंशाल्लाह अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू लीगल, इमिग्रेशन, लिटिगेशन और representation, और अगर आपके पास anything to do with employment or any other issues, then please you've got our details, contact number, आप हमें contact कर सकते हैं। तो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं। Thank you for watching Legal Matters.